I am Vijay Kumar. Today I am going to present before you one of the poem of class 7 English literature book DAV board Wordy Will You Pet, composed by William Allingham. First of all, we will know about the poet. William Allingham was an Irish poet, diarist and editor. He wrote several volumes of lyric, verse, and his poem The Fairies was much anthologized, but he is better known for his posthumously published diary, in which he records his lively encounters with Tennyson, Carlyle, and other writers and artists. Now, about the poem. The poem Birdie Will You Pet is about a bird which refuses to be used as a pet. Another character is the child, and the child offers various comforts to the bird in exchange for its freedom, but the bird declines them. The child offers silken quills, velvet bed, and a satin pillow to attract the bird. He also offers diamond, stones, umber, etc. The bird refuses to live in a cage and chooses fresh water and air. In this poem, child and the birdie, two characters. The child wants the birdie to make her pet, but the bird refuses. The birdie wants its freedom more than the expensive things. The child offers the birdie silken quills, necklace made up of diamond, stones, umber and jet. An ivory seat is also offered by the child. Like this, the child offers a lot many things. The birdie didn't want to accept all these things because she doesn't want to lose her freedom. Now we'll read the poem. If we find out on the display, Birdie will you pet? Oh birdie, birdie, will you pet? Summertime, oh birdie, birdie, will you pet? Summertime is far away yet. Oh birdie, birdie, will you pet? A child asks a birdie, oh birdie, will you pet? Summertime is far away yet. Means summertime has not come. Would you like to pet? Would you like to stay in my house? एक छोटी सी बच्ची एक बर्डी से कहती है कि क्या तुम मेरे यहाँ पालतू बन के रहना पसंद करोगे? अभी तो समर का सीज़न नहीं है ना, आ जाओ. Birdie, birdie, will you pet? You will have silken quills and a velvet bed. The child offers. She will give a silken quills and a velvet bed. ए सिल्क का गद्दा भी देंगे, वेलवेट मखमल की चादर भी देंगे. आओ तुम उसी पे बैठ के रहना. You can find out the picture here. And a pillow of satin for your head. If you'll have the pen in your head, satin means pen, then you will get a pillow, very short pillow. Birdie, will you pet? I would rather sleep in the ivy wall. Here ivy, you may find out here, climber has been given in the wall on the pictures. Ivy is a climber plant which works like a wall. It protects the bird from wind, rain and sun. The birdie prefers to live in ivy wall rather than sleep on the bed, silken quills and velvet bed. वो उसको ऑफ़र नहीं करके कि हम बेड पे सोएंगे, गद्दे पे सोएंगे, मखमल के चादर पे सोएंगे, मेरे को तकिया चाहिए. बर्डी कहती है कि मेरे को प्रकृति के गोद में ही रहने दो. मैं क्लाइंबर के बीच में, वॉल के बीच में जो क्लाइंबर लटका हुआ है उसी में मैं रहूँगी, मेरे को उसी में मज़ा आता है. No rain comes through though I hear it fall. Now birdie tells कि if I live there in your house, I can't get the sound of raining. बर्डी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, गद्दे पे रहूँगी, रूम में बंद रहूँगी, जो मज़ा मैं ये आईवी वॉल में रह के लेती हूँ वो मज़ा वहाँ नहीं मिलेगा. यहाँ बरसे की बूंदों की भी आनंद लेती हूँ, उसकी आवाज़ भी सुनती हूँ कि बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ क्या होगा. द सन पीप्स
गे एट डॉन ऑफ डे और अर्ली इन द मॉर्निंग, नज़ारा देखिए सूरज का, सुबह सुबह आकर के मेरे को जगाती है। तो ये सुनहला पल आपके घर में कैद रहने से हमको नहीं मिलेगा। मैं सुबह के समय घूमती हूँ, मज़ा आता है। क्या येलो कलर की उधर से लाल में आती है सूरज की, वो नज़ारा तो आपके घर में रह के मैं नहीं देख सकती ना, इसलिए मैं पालतू नहीं बनूँगी। एंड आई सिंग एंड विंग अबे अबे, और मैं सुबह सुबह गाना भी गाती हूँ और उड़ती भी हूँ। तो आपके घर में अगर मैं रहूँगी तो ये सब मेरे को नहीं मिलेगा। बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड अंबर एंड जेट, नाउ द चाइल्ड ऑफर्स, यो बर्डी इफ़ यू विल पेट, अगर तुम मेरा पालतू बनोगे तो देखिए मैं डायमंड दूंगी, अंबर दूंगी और जेट दूंगी। बर्डी विल यू पेट विल स्ट्रिंग ऑन ए नेकलेस फेयर एंड फाइन, इतना ही नहीं, मैं तेरे गले में एक हार दूंगी, नेकलेस। बर्डी विल यू पेट टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन, क्या बर्डी तुम मेरा पालतू बनोगे, मैं तुमको खुश रखूँगी। बर्डी कहती है ओ थैंक्स फॉर डायमंड एंड थैंक्स फॉर जेट, वो कहती है धन्यवाद, आपने मेरे को डायमंड्स देने के लिए ऑफ़र दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मेरे को जेट देने के लिए ऑफ़र दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बर्डी विल यू पेट, यू नो आई हैव समथिंग एल्स विच इज़ रियली डेलिकेट, बर्डी अब कहती है अपने सपोर्ट में कि देखो तुम हार देने की बात करते हो, तुम जो कहते हो ना, बट देर इज़ समथिंग डेंटियर इट, लेकिन फिर भी तुमसे ज़्यादा सुंदर और डेलिकेट मुलायम मेरे पास है, अच्छा है। ए फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड, नाउ द बर्डी कंपेयर्स कि इफ़ यू वांट टू गिव मी ए नेकलेस, आर्टिफिशियल नेकलेस इजंट इट, बट आई डू नॉट वांट दिस आर्टिफिशियल नेकलेस, आई हैव द फेदर नेकलेस, दिस इज द फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड that I wouldn't sell for 1,000 pound, and this is the natural necklace, I would not like to sell it, 1,000 pound भी अगर तुम दोगे तो मैं इसको नहीं बेचूंगी। बर्डी बर्डी विल यू पेट, ओ बर्डी बर्डी वुडंट यू पेट, वो फिर बच्चा कहता है बर्डी तुम मेरा पालतू नहीं बनोगे, विल बाय यू ए डिश ऑफ सिल्वर प्लेट, मैं तुम्हें खाने के लिए एक चांदी की थाली दूंगी, एक गोल्डन कप एंड आइवरी सीट, पीने के लिए एक सोना का कप दूंगा, और ये हाथी के दांत के बने हुए ये चेयर दूंगा, आइवरी सीट, एलिफेंट टस्क्स। बर्डी विल यू पेट एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और तुम जब चलोगे तो उस नीचे में मैं कारपेट बिछा दूंगी ताकि तेरे पैर में कोई खरोंच नहीं आए। नाउ व्हाट द बर्डी रिप्लाइज, कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, वो कहती कि जो ये रनिंग वाटर देखिए इसमें पहाड़ से निकलती है, क्या ये पानी जो मैं पीती हूँ ये पानी आप ये गोल्डन कप में मिलेगा मेरे को, कभी नहीं मिलेगा, नेचुरल नहीं मिलेगा। कैन ए सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल, देखिए ये फॉरेस्ट में जाकर के जो मैं तने पे बैठ जाती हूँ, वहाँ के फल फूल खाती हूँ, क्या वो मज़ा ये सिल्वर की थाली में मिलेगा, नेवर। सी कंपेयर्स दैट माई फॉरेस्ट होल इज़ बेटर देन द सिल्वर प्लेट। बर्डी विल यू पेट, अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर, वो कहती है कि आप हाथी के टस्क मेरे को देते हो बना हुआ चेयर, उसके दांतों का, उससे ज़्यादा बेटर पेड़ की टहनियाँ होती है, उससे ज़्यादा बेटर कोई और भी चेयर नहीं होगा। सी कंपेयर्स द चेयर मेड ऑफ टस्क्स better than, not better than the rocking twigs. Birdie will you pet, and the softest was lie through the air. Now she compares the velvet carpet to the air. She tells that when I fly in the air, this is my path, and this is the softest, the most softest than the carpet. वो कहती है कि जब मैं हवा में उड़ती हूँ तो हवा में जो नम्रता है, डेलिकेशंस है, वो आपके कारपेट में होगा। बर्डी विल यू पेट, गुड बाय टू माई लेडी फेयर, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, अलविदा 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 माई लेडी फेयर, मैं आपकी कभी पालतू नहीं बनूंगी। तो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? हु डजंट वांट फ्रीडम? एवरीवन वांट्स फ्रीडम, वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स
or animals. The poem describes that freedom is more valuable than materialistic things. All animal and birds should get freedom. As we enjoy the taste of freedom, hence freedom should not be snatched at any cost. Now I would like to summarize the poem. The child offers many things such as silken quills, velvet bed and pillow of satin, a necklace made of diamond, amber and jet, a dish of silver freight, a golden cup, ivory sheet, everything, but she refuses all the things. Why? Because she wants to live freely. For the bird, freedom is more important than the luxurious life. That's all. Thanks. If you have not subscribed, please subscribe it, like it, and share it.